बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छी बात, वो खुदा से बहुत करीब है जो खुश इखलाक और दूसरों का बोझ उठाने वाला है। Our ongoing chapter is chapter number 1, understanding the problem. In this chapter, we will discuss about the problem, how can we understand it, and what are the solutions, and what is the best solution for a given problem. So let's start. Today's SLOs are: after watching today's lecture, students can be able to understand about any problem and how can we manage it and what are the best solution. First of all, you have to know about the what is a problem and how can we understand it. So the first word is what is a problem. We have to first understand what is the problem means. Problems are a part of our life. All of us face problems at some points or the other in a life. These problems can be a personal problem at home with your brothers, with your sisters or parents, or it can be also be a professional problems which you might face with your co-workers, with your team members, or even with your manager or boss. Problems will always be there, but you need to understand how to solve the problem. In the most efficient and effective manners. So you have to know about the problems. What is the problem? First of all, you have to know about the what is the problem. After understanding the problem, you can solve a problem in an efficient way. First of all, the word problem. The word problems comes from the Greek word probelion. Pro mean before and belion means to throw. Before and to throw. So this is belongs to a Greek word, probelion. Now let's go for the definition of the problem. What is a problem? Often we define a problem as something that's wrong or done incorrectly, or any question or matter involving doubt, uncertainty or difficulty belongs to word problem. For example, I have a problem with my computers. So problem क्या होगी? Often we define problem as something that wrong or to be done incorrectly. जो चीज़ें गलत हो रही है वो हम उसको एज ए कंसिडर करेंगे डेट इज़ अ प्रॉब्लम, कि वो एक प्रॉब्लम है. अब इसको हम किसी अच्छे वेल मैनर के ऊपर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका एक सोल्यूशन है. या कोई भी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन है, एनी क्वेश्चन और मैटर इन्वॉल्विंग डाउट, अनसर्टेनिटी और डिफिकल्टी. कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, किसी कोई काम करने के लिए मुश्किल हो रही है, तो वो एक प्रॉब्लम है. इवन कि आप कोई फॉर एग्जांपल मैथ का क्वेश्चन करते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है. okay? जैसे मैंने पहले बताया कि ऑल ऑफ अस फेस प्रॉब्लम्स एट सम पॉइंट्स, कि तो हमें कहीं ना कहीं पे बहुत सारी डेली लाइफ के ऊपर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ हमें रहना पड़ता है, और उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व भी करते हैं इसी वेल मैनर्स के फॉर्म में.
दूसरी डेफिनेशन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इशू और प्रॉब्लम currently existing that need to be addressed solved. A problem statement क्या होगी, is the description of an issue or problem currently existing that needs to be addressed solved. कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो करंटली चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड भी एक प्रॉब्लम है, करंटली एग्जिस्ट कर रही है। अब उसके साथ कैसे हैंडल करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। बहुत सारे स्टेप्स को देखने के बाद, उनकी मेजरमेंट्स लेने के बाद कि व्हाट आर दी एडवांटेज, व्हाट आर दी डिसएडवांटेज, सारे इसके एग्जिस्टिंग, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं इस चीज़ को तो वो हमारे लिए कितनी इफेक्टिव होगी। तो उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि किसी भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को जो करंटली एग्जिस्ट कर रहा हो उसको सॉल्व करने के लिए नीड टू बी एड्रेस्ड और सॉल्व। जैसे फॉर एग्जांपल, माय बिजनेस इज नॉट गोइंग वेल, द स्टूडेंट हैव टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। जैसे माय बिजनेस इज नॉट गोइंग वेल, कि आदमी कहते हैं मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा, क्यों कि वो अपडेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, वो कुछ अपना मैनुअल बिजनेस चला रहा है जिसकी वजह से वो उसका बिजनेस सही नहीं चलेगा। जैसे कोई स्टोर वाला है, सिंपल स्टोर वाला है, उसे अपनी चीज़ें डेली बेसिस के ऊपर काम करता है, उसकी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो हफ्ते बाद जाएगा, मार्केट जाएगा, वहाँ से कुछ चीज़ें लेगा, चीज़ें लाने के बाद अपने स्टोर में अपनी दुकान पे रखेगा, फिर वो सेल आउट होंगी। लेकिन क्या हुआ, उस पूरे वीक में उसके पास चीज़ें कम थी, तो उस पूरे वीक में उसके पास जो चीज़ें कम थी उसकी वजह से क्या हो गया, जो उसके कस्टमर थे वो चले जाएंगे, वो किसी और जगह पे देखेंगे, नेक्स्ट टाइम वो नहीं आएंगे कि भाई यहाँ से तो वो चीज़ नहीं मिलती। तो इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हमने एग्जांपल ली कि उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि वो ऑनलाइन चीज़ें नहीं करता, ऑनलाइन पेमेंट करे, ऑनलाइन ऑर्डर करे, इसके पास चीज़ें खुद शॉप पे या स्टोर पे आ जाएंगी तो उसको अपने स्टॉक में रखेगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट सी फॉर्म के ऊपर हमने इसकी डेफिनेशन की कि प्रॉब्लम क्या है। पीछे स्लाइड्स पे भी हमने देखा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, और यहाँ पे भी एग्जांपल हम इसमें देख रहे हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू ट्राइंग टू सॉल्व। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल इसमें करते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि मेरे सर में दर्द है, मुझे मेडिसिन दे दें। डॉक्टर आपको सही तरह से नहीं सुनता, ठीक है बस ठीक हो जाएगा, वो आपको मेडिसिन लिख देता है, आप चले जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, 2 दिन खाते हैं, 3 दिन खाते हैं, ठीक नहीं हो रहा, आप वापस आते हैं, डॉक्टर साहब वो तो ठीक ही नहीं हो रहा, अच्छा क्या हुआ था। अब उसने थोड़ी सी बात को देखा, जी क्या हुआ था, कौन सी मेडिसिन दी थी। अब वो थोड़ा देखेगा उसको, अच्छा नहीं चलो, अच्छा ये वाली मेडिसिन ले लो, ठीक है, उसको वो रिप्लेस कर देगा किसी और मेडिसिन से। क्या हुआ कि उसने ज़रा सा उसको ट्राई किया कि उसकी प्रॉब्लम को समझे, तो अंडरस्टैंड उसने किया प्रॉब्लम के व्हाट प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम क्या है, सर में दर्द है, तो उसको सर से रेलिवेंट ही मेडिसिन दे ताकि वो ठीक हो जाए, ना कि उसको कोई और मेडिसिन दे जिससे वो ठीक ही ना हो रहा हो। कि वो क्या था, उसने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। तो इसी तरह सेम लाइक डैट कंप्यूटर के अंदर भी जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कोई आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, कोई आप छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर भी क्रिएट करेंगे तो उसके लिए भी आपके टाइम कंज्यूमिंग है, आपको टाइम चाहिए। कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, क्या, तो उसको आप उसके ऊपर प्रॉब्लम को फोकस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर रहे होते हैं। तो जो आपने प्रॉब्लम क्रिएट की होती है उसके बाद आप सॉल्व कर, लेकिन जब आप साल बाद काम करके आए कि ये मैंने इसका सॉफ्टवेयर बना दिया है, किसी मैनुअल सिस्टम वाले को दें कि ये मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया है, तो वो कहेगा ये तो मेरे लिए नहीं बना, ये तो मेरी प्रॉब्लम भी नहीं थी जो आपने सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया। तो क्या हुआ, वो सॉफ्टवेयर उसके काम का ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमारी लाइब्रेरी सिस्टम तो मैनुअल सिस्टम है, इसमें किसी बुक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप अभी चले जाएं लाइब्रेरी वाले के पास, उससे पूछें कि आपके पास कितनी बुक्स हैं, आपके पास मैथ की कितनी बुक्स हैं, इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं, कितनी बुक्स आपने इशू की हुई हैं, कितनी बुक आपके पास रिमेनिंग में है, कितनी बुक एक्सपायर हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं, तो वो कोई चीज़ भी आपको नहीं बता सकेगा क्योंकि वो एक अपना मैनुअल सिस्टम चला रहा है। यही चीज़ अगर आप उसको कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर बना दें
तो क्या होगा, अब उसके पास हर चीज़ कंप्यूटराइज होगी, वो एट ए टाइम आपको बता देगा जी अभी आप पूछें उसके बाद कितनी बुक्स हैं, क्या फ़ौरन से क्लिक करना सर बता देगा मेरे पास इतनी बुक्स हैं, इतनी सब्जेक्ट्स वाइज इसकी कैटेगरी है, इतनी बुक्स की फॉर्म के ऊपर मेरे पास सारी स्टोर हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। लेकिन जब आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो आपने उसको पूछा ही नहीं कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। अब साल बाद उसके बाद जाते हैं कि हमने लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर, हमने समझा नहीं कि लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर उसके लिए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैंने जितना भी सारा रिकॉर्ड है कंप्यूटराइज करना है अपनी लाइब्रेरी का, तो आप उसको किसी और फॉर्म के ऊपर सॉफ्टवेयर बना दें जो उसके काम का ही नहीं है। आप उसको सॉफ्टवेयर देंगे, वो कहेगा ये तो मेरे काम की नहीं है, यहाँ पे तो बुक सेंटर नहीं होती, सर्च नहीं होती, नई बुक्स की सर्च नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, आपने उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट प्रॉब्लम आर यू ट्राइंग टू सॉल्व, कौन सी प्रॉब्लम है आप किसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इट मस्ट बी क्लियर, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। यहाँ पे एग्जांपल देखें कि अब इनको तो समझ ही नहीं आ रही, हर एक अपनी अपनी साइड पे खींच रहा है, लेकिन क्या है प्रॉब्लम उधर की उधर ही है। कोशिश कर रहे हैं सारे हम इसको सॉल्व करने की, यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से इसको खींच रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे कि इसकी मेन कॉज क्या है। इसको सारे लगे हैं कोशिश करने सॉल्व करने, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि प्रॉब्लम है क्या। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम आते हैं अपने इस चैप्टर के टाइटल की तरफ, जिसमें था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। After identify the problem, you must have to clear the problems, identify the problem, and you can find the best solution. So इसकी definition करते हैं। Problem solving. Problem solving is a process of identifying the problem and find the best solution for it. Problem solving is a skill that can be developed by following a well-organized approach. Solving problem is the main task of computer, which is the job of computer programmer. Programmer must first understand how a human solve a problem, then translate it into a set of instruction in a programming language that a computers can understand and execute. Okay, अब इसमें एक से चार पॉइंट है मेन कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट। कि किसी भी प्रॉब्लम के सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में किसी भी प्रॉब्लम का कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता, हर प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। एनी प्रॉब्लम्स कैन हैव मैनी सॉल्यूशंस, बट यू हैव टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट। आपने उसमें से जो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपने फाइंड करना होता है। इसके एग्जांपल देखिए, अगर आपको आपके घर के दो दरवाजे हैं, ठीक है, तो आपको कहा जाता है कि आपने एग्जिट होना है, तो क्या आप करेंगे, आपसे जो बिल्कुल पास होगा दरवाज़ा आप उसकी वहाँ से एग्जिट होंगे, या एग्जिट होने के बाद आपने कहाँ पे जाना है वो आपको इजी लगेगा तो आप वहाँ से एग्जिट होंगे ना कि आप दूर जाके दूसरे दरवाजे से एंटर एग्जिट होंगे। ठीक है, तो इसी तरह की बहुत सारी कि आपके बहुत सारे सोल्यूशन हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारी गेम होती हैं, ठीक है, जिसमें आप देखते हैं कि बेस्ट सोल्यूशन क्या है किसी प्रॉब्लम को, उसको अपनी तरफ जाना है। ठीक है, जैसे एक गेम आती है जिसमें ट्रैवल करना होता है, उसकी बाउंड्री बनी होती है, बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें उसने ट्रैवल करके जाना होता है, तब उसमें से टर्न डिफरेंट होते हैं, अगर वो टर्न उसने गलत ले लिया तो उसका गलत आउट ही नहीं हो सकेगा। तो इस तरह प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस में से यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट, कि उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा रहेगा इसके लिए, ये आपने उसमें चेक करना होता है। दैट इज कॉल्ड अ स्किल। इसीलिए इसको कहा जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल। एक स्किल है, इसी वजह से कि बहुत सारी ऑप्शन है, बहुत सारे उसके सॉल्यूशंस हैं, और बाय यूजिंग अ स्किल्स यू कैन चूज अ बेस्ट सॉल्यूशन। फिर आप उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं अगर आपको स्किल आती है। नहीं तो आप कोई भी सॉल्यूशन ले लें, उसके चल पड़े, उसके ऊपर आप वर्किंग करते रहें, लेकिन एंड के ऊपर जाके क्या होगा कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल दैट कैन बी डिवेल्प्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। मतलब उनको किसी स्टेप्स के ऊपर फॉलो अप करने के बाद हम
उसको सॉल्व कर सकते हैं उस स्किल। तो एक स्किल है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच, कि उसके लिए जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, डिफरेंट स्टेप्स से पास आउट होना चाहिए। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज द मेन टास्क ऑफ कंप्यूटर, ये मेन टास्क होता है कंप्यूटर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। विच इज द जॉब ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो कि आप वो कैसे करेगा कंप्यूटर, जो का मेन टास्क तो है, लेकिन वो जॉब कौन कराएगा, उससे कंप्यूटर प्रोग्रामर कराएगा, उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स लिख के उसको एग्जीक्यूट करा के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। Programmers must first understand how a human solve a problem, then translate into a set of instruction in a programming language that a computer can understand and execute. अब जो प्रोग्रामर है जो सॉल्व करने जा रहा है प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है, उसका काम है कि वो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अपने ट्रांसलेट करें इनटू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर, उसको ट्रांसलेट करें, उसको मैनुअली या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में के अंदर भी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको लिखने के लिए पहले उसको अपने प्रॉब्लम को इनटू सेट एक पूरी इंस्ट्रक्शन बनानी चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसीजर आउट डिक्लेयर करना चाहिए कि उसका प्रोसीजर किस तरह डिक्लेयर हुआ हो, किन को फॉलो करते हुए मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो इसलिए उसको अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बता दी जानी चाहिए कि फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्या करना है, सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है। तो इस तरह अपने स्टेप वाइज को जब वो मैनेज कर लेगा तो उसको फॉलो भी करेगा, तो एक बेस्ट सोल्यूशन निकलेगा किसी भी प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफरेंट फेजेस हैं, जो इसके मेन फेजेस हमारे पास डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना ज़रूरी है सबसे पहले, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, सिलेक्शन द बेस्ट सोल्यूशन। ये इसके मेन किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, इन सब को इस चैप्टर में मेन यही है हमारे पास, ये सारे इसके स्टेप्स को हमने करने हैं, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हो जाएगी। तो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन इन स्टेप्स से फॉलो अप, मैंने बात की लास्ट स्लाइड में कि इसको इन स्टेप्स को फॉलो अप करने के बाद ही हम किसी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना चाहिए, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। तो इस फर्स्ट स्टेप में हम कहते हैं डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। स्टेप 1, द फर्स्ट स्टेप or phase of a problem solving is to identify and define the problems clearly. It is very important to understand the problem before the programmer start working on its solution. ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे कि उसका सोल्यूशन की तरफ जाए, उसको सॉल्व करने की तरफ जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू प्रॉपरली डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब इसमें 3 स्टेप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए बताएंगे कि डिफाइन द एंड अंडरस्टैंड द, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। केयरफुली रीड द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेल्स, जो मैंने डॉक्टर वाली बात बताई आपको, एग्जाम्पल थी, केयरफुली रीड द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करें, टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेल्स, कि वो प्रॉब्लम क्या बता रही है, उसकी क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिक्लेयर करने के लिए जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केयरफुली रीड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। सेकंड पे फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आस्क्ड टू डू, प्रॉब्लम है लेकिन वो क्या रिजल्ट चाहती है, उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन चाह रही है, उसका क्या सोल्यूशन होगा, उसको फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आस्क्ड टू डू, कि क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थर्ड, व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम, अब उस प्रॉब्लम से जो अभी चल रही है, जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, उससे हमें रेलिवेंट क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसमें देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या है उसके लिए, व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम, से क्या क्या ऑब्टेन कर रही है। फॉर एग्जांपल पेशेंट कहता है मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर कहते हैं कि उससे क्या करेगा, व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन, उससे आप प्रॉब्लम से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि भाई आपने पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आपने क्या खाया था, रात को क्या खाया था, अभी क्या खाया है, 2 दिन पहले क्या खाया था, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खाई,
ठीक है। इस तरह की जब उससे इन्फॉर्मेशन पूछेगा तो यही उसके लिए प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। तो ये इसमें 3, केयरफुली रीड द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेल्स, फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आस्क्स टू डू, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल करते हैं 2 इसकी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने कहा था ना कि छोटी छोटी सोल्यूशन को भी हमारे पास डेली लाइफ के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उनके भी सोल्यूशन हो सकते हैं। अब सिंपल है, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स स्टूडेंट के निकालने हैं। इट्स मीन के हमारे पास सम होना चाहिए और एवरेज का फार्मूला होना चाहिए। स्टेटमेंट्स दैट एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हैव टू बी क्लियर एंड मस्ट बी फाउंड आउट। अब इसमें देखिए क्लियर है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि इसमें क्लियर स्टेटमेंट है कि एवरेज फाइंड आउट करनी है, बस इसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है या कंफ्यूजिंग नहीं है। दस क्लियर है, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक स्क्वायर, क्वाड्रेटिक स्क्वायर का वैल्यू निकालनी है आपने, स्टेटमेंट क्लियर है। तो क्लियर होनी चाहिए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? द प्रॉब्लम मस्ट बी क्लियर। ये हमारे पास इसका स्टेप 1 था। तो इनमें से हमने जो इसका फर्स्ट स्टेप किया प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट होगा इसके एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, कि हम प्रॉब्लम को किस तरह एनालाइज करेंगे। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट स्टेप किया है इसका, तो ये आपने नोट डाउन करना है काम सारा, और राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेफिनेशन लिखनी है। लिस्ट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन, जो स्टेप्स हमने अभी 1 में बताए इनके बारे में बताना है। राइट एंड लर्न द स्टेप 1 डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, लास्ट पे जो किया डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ये आपने भी डिफाइन करना है। थैंक्स।